प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो आपसे सवाल करे और कड़े सवाल करे। ये तू मैं नहीं है। अगर जनता ने आपको राज करने का अवसर दिया है तो जनता के हितों के पहरेदार के रूप में हमें नियुक्त किया है और हम उस पहरेदार का काम करते रहेंगे, भले आप उसे तू मैं कहें या एक शेर पढ़कर अपनी खामोशी पर संतोष करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपसे हमारे बड़े सीधे सवाल हैं। ऐसा क्या है कि आपके प्रधानमंत्री काल में आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले एक से एक बढ़कर हो रहे हैं? राष्ट्रमंडल, 2G, आदर्श घोटाला, एयरपोर्ट की जमीन का घोटाला, कोयला ब्लॉक में घोटाला, और आप खामोशी से देखते रहे। हम आपसे आपकी नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व का जवाब मांग रहे हैं। अब ये तो साफ बात हो गई कि जब आप प्रधानमंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री भी थे तो आप मंत्रियों के दबाव में उनके रिश्तेदारों और संबंधियों के लिए कोयले ब्लॉक का आवंटन कर रहे थे। और हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, आपके साथ दोहरा मानदंड क्यों किया जाए? अगर 2G में सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर तत्कालीन मंत्री श्री राजा और दयानिधि मारन को पद से त्यागपत्र देना पड़ा है, तो जब सीबीआई आरंभिक जांच में ही गड़बड़ी पकड़ रही है तो आप कोयला मंत्री के रूप में इस्तीफा क्यों नहीं देंगे ईमानदार जांच के लिए? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। और अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें तू मैं क्यों है? प्रधानमंत्री जी, देश हित में हम ये सवाल उठाते रहेंगे। जैसा सुषमा जी, अरुण जी ने मांग किया है, इन सारे कोल आवंटन ब्लॉक को तुरंत कैंसिल किया जाए, आप इस्तीफा दें और एक फेयर, ईमानदार प्रोब हो। अंग्रेजी में बोल देता हूं। Honorable the Prime Minister, it is our constitutional obligation as the principal opposition along with other opposition parties to ask questions from you, to seek accountability from you. It is not tu मैं. If the people have elected you to govern the country, they have also given us the responsibility to become custodian of their interests. And we shall continue to ask questions, whether you call it tu मैं or seek solace about your silence by reciting certain Urdu couplet. Dr. Manmohan Singh ji, we have a very straight question to ask from you. Why is it that some of the biggest shameful scandals and instances of corruption have taken place since independence when you have been the Prime Minister? The Commonwealth scam, the 2G scam, the Adarsh scam, the airport land scam, privatization scam, now the coal block scam. We are seeking your moral, political and constitutional accountability. Therefore seeking your resignation. Is it not a fact that now it is evident that under the pressure of your ministerial colleague, you as the Prime Minister, also holding the coal minister in charge, was allocating coal blocks for their kith and kins? Public interest was sacrificed. The CBI has found many irregularities even in the preliminary investigation. If on that basis we are seeking your accountability, why different standards for you? If Mr. Raja as the telecom minister or Mr. Dyanidhi Maran were forced to resign in the wake of CBI investigation, why should you remain in office when a CBI investigation is on? A very straight question, Honorable the Prime Minister. You call it tu मैं, but we shall continue to insist your accountability. That's what the country wants. As Sushma ji and Arun ji have already demanded publicly, all these coal blocks must be cancelled, the PM must resign, and there must be a fair probe. That demand remains relevant. And the more the Prime Minister opposes this, the more he is going to create a cloud over himself. सर, दिग्विजय जी ने कहा कि गडकरी जी जो है
विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और पार्टी यहाँ पर सदन में हंगामा कर रही है, कहाँ है गडकरी? वो अपने बहुत ही पूर्व नियोजित पारिवारिक कार्यक्रम में गए हैं, जो 3-4 महीना पहले बन गया था। उनके संबंधियों के यहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर। लेकिन दिग्विजय सिंह को तो कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। आप लोग इतने गंभीरता से क्यों लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनको बहुत दिन पहले गंभीरता से लेना बंद कर दिया, अब तो देश ने भी बंद कर दिया। So back to coal, an interministerial panel has found that there were irregularities in over 50 companies, and they are saying that these coal allocations should now be reviewed and some may even be cancelled. So this again questions the coal policy which was being followed by the UPA government. What do you say? It only confirms what we have been saying. If the CBI in the initial investigation, in spite of pressure, has found irregularities, if your own officers are finding irregularities, Honorable the Prime Minister, what you were doing when you were the coal minister? The entire 145 blocks allotted between 2006 to 2009 when you were the coal minister. Therefore, a bounty was sought to be awarded for people having approach. That's the whole thing is about. सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहुल जी को कैबिनेट में आ जाना चाहिए, तो क्या लगता है उनको सरकार में ट्रेनिंग देने की अब कोशिश की जा रही है? अब ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो उनको मंत्री बनाए या प्रधानमंत्री बनाए, ये तो उनका मामला है। सोनिया जी राष्ट्रपति भवन लगातार हर बार मिलने चली जाती हैं, क्या आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति भवन पॉलिटिकल भवन बनता चला जा रहा है? अब महामहिम राष्ट्रपति से मिलने कोई भी जा सकता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो देश के संवैधानिक सर्वोच्च। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सीबीआईसी चिट्ठी लिखी थी कोल ब्लॉक ऑर्डर के मामले। देखिए, आप लोग एक बात समझिए, कोयला खदानों को आवंटित करना भारत सरकार का दायित्व है। कोई भी मुख्यमंत्री तो अनुशंसा करेगा, हमारे यहां उद्योग आए, लेकिन उसको पारदर्शी तरीके से जांच करने का काम तो भारत सरकार का है। और ये तब होता है जब कोयला मंत्री का आदेश होता है, लिखित रूप से उनका दस्तखत होता है। जब मनमोहन सिंह का था, क्या जिस तरह से मंत्रियों के परिचितों को दिया गया है, संबंधियों को दिया गया है, ये अनुशंसा थी क्या? सर, अर्जुन मुंडा जी का उस कंपनी के अंदर उनकी वाइफ भी डायरेक्टर है, जिस कंपनी के लिए उन्होंने। अब नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। सीधी राज ठाकरे थैंक यू। राज ठाकरे फिर बेलगाम। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 साल पहले राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने पूछा था कि जो पैसा है वो डायरेक्ट आप ग्राम सभा को नहीं भेज रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप भेजेंगे डायरेक्ट ग्राम सभा को तो मगरमच्छ जो हमारे आसपास है हमको खा जाएंगे। मतलब राहुल गांधी कैसा एलायंस की तरफ। केजरीवाल से उनकी क्या बातचीत हुई, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? कोई भी सरकार के पैसे ईमानदारी से खर्चा होना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। मैं इतना ही कहूंगा राज ठाकरे जी के इस धमकी के आरोप में कि भारत के संविधान में कोई भी कहीं भी जाकर बच सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और यही इस देश की एकता है। इस एकता का सबों को सम्मान करना चाहिए। पूरा देश एक है। और मैं तो एक और बात मानता हूं, जब तक मुंबई में गणपति बप्पा हैं और जब तक काशी में महादेव हैं, तब तक भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ नहीं सकता।